फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। As we have already discussed 14 MCQs in the last lecture, today we are going to discuss question number 15. More MCQs we are going to discuss. In the last lecture we have 14. Now from today we are going to discuss from 14 onwards. Uh, Now our today's first question is: under the IPC, power of commutation of sentence of death is vested in. सेंटेंस कम करने का पावर आईपीसी में किसके पास है? अगर सेंटेंस ऑफ डेथ हुई हो तो कम्यूटेशन ऑफ पावर किसके पास है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी appropriate government, and option D all of the above. We have discussed this MCQ with this question also. I have told you that section 54 provides commutation of sentence of death, and there the commutation of sentence of death is given. किसको दिया गया है पावर? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फिर मैंने बोला कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 55A। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सो द कम्यूटेशन ऑफ पावर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इज वेस्टेड इन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दिस वन. Now coming to question number 16, the IPC extends to option A, the whole of India, option B, the whole of India except Arunachal Pradesh, option C, the whole of India except Nagaland and Mizoram, and option D, the whole of India except Jammu and Kashmir. जो ऑप्शन इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 1 दैट फर्स्ट इट वाज कि द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, द आईपीसी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. बट after the abrogation of article 370 which was applicable on the Jammu and Kashmir, that after its abrogation now the this IPC is applicable to the whole of India. I will tell you the section language of the section 1. What section 1 tells us? Section 1, the title of the section is title and extent of operation of code, and there in section 1 it is written, this code shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. ठीक है। पहले इसमें ऑप्शन था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वी वायर इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी वायर हैविंग द own code, Ranbir Penal Code. But due to the after the abrogation of Article 370, that Ranbir Penal Code has now got repealed. Now the Indian Penal Code is applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir also. So it is provided in section 1, and the correct option here is option D, whole of India except the state of Jammu and Kashmir. No, correct option is here the whole of India, option A. ठीक है, डोंट confused. पहले तो यही था whole of India except Jammu and Kashmir, but now it is applicable to the whole of India. ठीक है. Now coming to question number 17, the provisions of IPC shall apply also to any person committed by shall also to any offense committed by a person of India and a citizen of foreign country in any place beyond India. ठीक है. Option B, any person on any ship or aircraft registered anywhere in the world. Option C, any citizen of India in any place beyond India. Option D, any person in any place without or beyond India committing offense targeting a computer resource located anywhere in Commonwealth nations. The provisions of IPC के जो provisions है shall also apply to offense committed by, ये किस offense पे
अप्लाई होगा प्रोविजंस आईपीसी। पहला ऑप्शन है द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया का वो इंडिया में वो पैदा हुआ हो और बट शहरी वो फॉरेन कंट्री का हो इन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर। नो, इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन सिटीजन से एप्लीकेबल है प्रोविजंस ऑफ ये, और फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल है इफ़ दे हैव कमिटेड द ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तब जाके आईपीसी उस पर भी एप्लीकेबल है, फॉरेनर पे भी। लेकिन सिटीजन ऑफ फॉरेनर पे एप्लीकेबल नहीं है, ये इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल है अगर उन्होंने ऑफेंस बियॉन्ड द इंडिया किया हो, तब भी इंडियन पिनल कोड के तहत आईपीसी उन पे एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट वन। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नहीं। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वायर एवर इट मे बी, इट मस्ट बी, अगर एनी पर्सन पे तो ये एप्लीकेबल है, बट ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट या शिप रजिस्टर्ड हुआ होना चाहिए इंडिया में। सो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया पे तो एप्लीकेबल है, बियॉन्ड इंडिया में हो या इंडिया में हो तो इस पे आईपीसी एप्लीकेबल है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स टू लोकेटेड एनीवेयर इन कॉमनवेल्थ नेशंस, नहीं। एनी पर्सन पे एप्लीकेबल है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, एनी पर्सन पे ये एप्लीकेबल है आईपीसी विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, और वो टारगेट कर रहा कंप्यूटर रिसोर्स, बट दैट कंप्यूटर रिसोर्स must be located in India, not in Commonwealth. So this option is wrong option. So here the correct option is option C. ठीक है। Now coming to another question, question number 18. The word injury in the IPC means, injury का क्या मतलब है? I have discussed this section also with you. The definition of the word injury is defined in section 44 of the IPC. And there it is mentioned that the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. So the correct definition is provided in section 44 and it is provided there that it first तो ये illegally होना चाहिए, harm क्या होना चाहिए, illegally कोई भी हार्म, लेकिन वो 4 चीज़ों पे हार्म होना चाहिए, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इन 4 चीज़ों पे जब हार्म होगा इलीगली, देन वी कैन से दैट इज इंजरी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। Now coming to question number 19, how many types of punishment are prescribed in the IPC? IPC में कितने किस्म के punishment prescribe किए गए हैं? आईपीसी में इन सेक्शन 53 में कितने पनिशमेंट दिए गए हैं? वहाँ पे बेसिकली 6 पनिशमेंट्स हैं, बट 1 पनिशमेंट हैव बीन रिपील्ड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, वो रिपील हुआ है। अब खाली वहाँ पे 5 ही पनिशमेंट है। किस में? सेक्शन 53 में पनिशमेंट्स के बारे में बोला गया है और वहाँ पे खाली अब 5 पनिशमेंट है। तो वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इधर? ऑप्शन सी, 5 पनिशमेंट है। वो कौन कौन सा? फर्स्टली डेथ, सेकंडली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्डली रिपील, जो थर्ड वाला है वो रिपील हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, वो तो मतलब किसी दूर जगह भेज देते थे, वो एज अ पनिशमेंट के तौर पर वो भेज देते थे। पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो वो भेज देते थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ज़्यादातर। और फोर्थली है इम्प्रिजनमेंट, जो 2 किस्मों की है, रिगरस या सिंपल। और फिफ्थ वाली जो पनिशमेंट है दैट्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, 6 तो फाइन है। ठीक है, एक रिपील हुआ है, अब खाली वहाँ पे 5 पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं। Now coming to question number 20, under IPC which of the following sections make provision of solitary confinement? ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, कौन सा है? दैट इज सेक्शन 73। सेक्शन 74 में लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और सेक्शन 73 में
सॉल्टरी कन्फाइनमेंट डिफाइन किया गया है कि कैसे सॉल्टरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, कौन देगा ये। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है एनिमल डज द वर्ड एनिमल डज नॉट इंक्लूड इन आईपीसी। वर्ड एनिमल आईपीसी में क्या इंक्लूड नहीं करता है। आई हैव डिस्कस्ड विथ यू दैट वर्ड एनिमल क्या डिनोट करता है, ठीक है। दैट इज दैट वर्ड एनिमल क्या डिनोट करता है, दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी कि वो क्या डिनोट करता है। वहाँ पे बोला गया है इन सेक्शन 47 द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी लिविंग क्रिएचर हो अदर, लेकिन इंसान ना हो, वो एनिमल होता है। दैट मीन्स एन एलिफेंट इज अ एनिमल, पीकॉक इज अ एनिमल, स्नैक इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्ड एनिमल डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो दैट इज ऑप्शन बी मैन, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट हैव बीन एबॉलिश्ड इन आईपीसी। आईपीसी में कौन सा पनिशमेंट एबॉलिश किया गया है। आई हैव डिस्कस्ड विथ यू दैट इन सेक्शन 53 देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड देयर, बट one originally there were 6 types of punishment, but one punishment have been repealed, that is transportation for life. So which of the following have been abolished in IP, sentence of death नहीं, वो तो दी जाती है, that is the first kind of punishment in provided in section 53. Imprisonment of life, that is the second type of punishment provided in section 53. Forfeiture of property, that is the fourth type of punishment. Transportation for life, it was the third type of punishment prescribed in section 53 that have been repealed, abolished. Now transportation for life is not mentioned there, ठीक है। So the correct option is option D. Now coming to question number 23, the maximum limit of solitary confinement is, maximum limit solitary confinement कितनी देर तक दिया जाता है, क्या लिमिट है इसका। सेक्शन इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 73। सेक्शन 73 में स्केल प्रोवाइड किया गया है कि सॉल्टरी कन्फाइनमेंट का लिमिट, सॉल्टरी कन्फाइनमेंट कितने, मैक्सिमम लिमिट इसका कितना है। दैट इज़ कितना है, दैट इज़ 3। ये मैक्सिमम लिमिट के बारे में बोलता है, दैट इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड द, जहाँ पे अगर हम 74 में देखेंगे वहाँ पे भी लिमिट ऑफ सॉल्टरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, बट दैट इज़ नॉट द मैक्सिमम, ठीक है। दैट इज़ वो प्रोवाइड करता है, वो बोलता है कि वो एट अ टाइम हम कितना दे सकते हैं, दैट इज़ 14 डेज का दे, लेकिन मैक्सिमम हम कितना देंगे, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 73 कि 3 महीने से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट सॉल्टरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इंडिया इज डिफाइंड। इंडिया किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, दैट इज इन सेक्शन 18। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 6 months, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर 6 महीने की हुई है ऑफेंडर को, द सॉल्टरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड, तो सॉल्टरी कन्फाइनमेंट इसमें कितने टाइम तक दी जा सकती है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 73। सेक्शन 73 में सेक्शन 73 में स्केल भी प्रोवाइड किया गया है कि कितने लिमिट की, एक तो ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए 3 months, और वहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर इम्प्रिजनमेंट किसी बंदे को 6 महीने की मिली हो तो उसमें 1 महीना सॉल्टरी कन्फाइनमेंट उसको मिल सकता है। अगर किसी बंदे को इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 महीने से ज़्यादा लेकिन 1 साल से कम, उसको इम्प्रिजन सॉल्टरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है 2 महीने के लिए। अगर किसी बंदे को इम्प्रिजनमेंट मिली है 1 साल से ज़्यादा, तो उसमें सॉल्टरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिल सकती है, 3 महीने तक मिल। सो आवर क्वेश्चन हियर इज कि इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 6 months, सॉल्टरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड, तो अगर 6 महीने की सज़ा मिली है तो सॉल्टरी कन्फाइनमेंट कितना होना चाहिए, वो 1 महीने का होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। It is all for today.
I have discussed with you almost 25 MCQs. Hope you will like it, and it will help you in your exams. If you find my lectures, yeah, if you find my MCQs helpful for any reason, hit like button, subscribe my channel, and don't forget to share with others. Have a nice day.